Good afternoon, everyone. I, Dr. PV Arya, hereby welcome you in your induction program being organized by IGNU 07175, IGNU Study Center, Dayal Singh College for July 2021 session. This session is particularly for the learners from MAN, that is Masters in Anthropology, and MAPY, Masters in Philosophy. Congratulations for your admission in your preferred program. This session is specifically to introduce you to the IGNU system and the facilities that are offered by the study center and the way you can avail them, especially the academic counseling and assignment submission. So this session will be in the form of first a quick PowerPoint presentation followed by interactive query session. As you are aware, IGNU is working in the tier mode system, 3-tier mode. First or topmost is the headquarter, IGNU headquarter, functions from Maidangadi. Then regional center spread all over the country. And these regional centers perform their function with the help of wide network of study centers. And I am representing one of the study center of Regional Center 1 located at Maidangad, Mohon Estate, and headquarter located at Maidangadi. On your screen, I'm sharing you my slide, and in the bottom of that slide, there is one email ID that is from our study center, and second last line contains an address of a website that is of our study center. For any authentic information, you need to keep in touch or remain updated with the information that is available on the IGNU website, and the IGNU website is ignu.ac.in. So ensure you are following the correct website for regular updates. Any information in the form of hearsay or WhatsApp group or Telegram group may not be authentic. So please ensure you are getting information from the correct source. Now coming to your own program, you have taken a responsible decision of completing your education or passion as per your preference in the open distance learning mode, ODL mode. Now you are more responsible for many of the acts and options that you can exercise. So you must be very careful, attentive to take best use of the opportunities and options available to you. First, you must be aware exactly what is your program, what is its structure, how you can complete it, what are the advantages, what are the deadlines. So you ensure that you make a chart layout of all the program details so that you can complete your program hurdle free within minimum duration and with a good success rate. Taking admission in IGNU system
may not be a difficult task, but the pass percentage or pass rate is very low because the usual negligence of information by learners may end them up in a stuck situation where they find that still some assignments are pending, some project work is pending. So you must be very much careful what you need to complete that you are missing. So for that purpose, please ensure you follow your program guide carefully. You're aware and updated what need to be done in order to complete your program within minimum duration. Within minimum duration means if you complete your program within minimum duration and maximum marks, you can compete for the gold medal that is given by the university. So in order to avail all the opportunities, be attentive in that regard. Now, as far as any program is concerned, there are two components. I'm referring the term program. Program is something to which you took admission, or degree for which you took admission. In IGNOU system, it is called as program. Then this program is made up of certain papers that is called as course in the IGNOU system. And in order to complete any program, its course are to be completed, and those course can be completed through two components. One is assignment carrying the weightage of 30%. Another is final examination carrying the weightage of 70%. So you must ensure that you complete assignment as well as final examination so that you can complete the course individually. In addition to this, in some programs, there are additional components in the sense practical, project work or dissertation. So if you go by your program guide carefully, you will be very much aware exactly what need to be done to complete a particular course. As far as study center is concerned, study center facilitates you for academic counseling. Here, you must be very cautious about this thing that we offer academic counseling, and academic counseling is something different from the regular classes. In the regular college mode, there are classes spread over the entire semester or entire year. But here in the IGNOU system, that is not the case. First, you need to go by your books, your study material that is provided by the university, note down your doubts, and whenever counseling is planned by the center, so that counseling may be of reasonable numbers, maybe 5-6 sessions, depending upon various factors. During those sessions, you can interact with the academic counselors to address your doubts. So first you need to self-study and then you can interact with your counselors. So that is one option that is facilitated by the study center. As of now, this is done by online mode. So in order to avail this, first you need to visit the study center website. When you scroll to this counseling schedule page, you will find this kind of layout as it is visible on my presentation. You need to scroll down it to lower this web page, and in lower side there will be a academic group QR code for July session admission and re-registration. You select your particular program. Suppose you are MAN, so you can select MAN first year, select that QR code, scan it. You will reach into a WhatsApp group dedicated for your program, your session. There
Our academic counselors will also join, and they will share their tentative counseling plan or counseling schedule. You can attend this the session accordingly, and your doubts will be taken care of by the respective academic counselor during those sessions. This is the point of interaction come information sharing WhatsApp groups. These are available for individual programs. I am mentioning again individually programs. For MAPY you will be selecting your program. For MAN you will be selecting your program. So this is the option about the counseling. As of now, for MAPY or MAN programs, the counseling will be likely to be started in the second week of Feb, most probably from the second week of Feb, depending upon number of sessions we are planning. So we will be ensuring that these sessions are during non-office working hours and Sundays only. So first, you need to note down your doubts and take best use of these planned schedules. Second is assignment submission. We are facilitating the assignments processing evaluation through online mode, and assignment need to be submitted in the process through the process that I'm sharing. Sharing by email and other mechanism is not accepted, not acceptable, or not we will not be able to process it. For assignments, you need to ensure that your file, that assignment file is in PDF format, and its name is in a systematic manner. First, it should have some program name, then course, and then enrollment number. Or if you deviate from the given instruction or process, so we may have some problem in processing the same, and you may feel the problems as well. For any assignment, first there should be a cover page. That is the first page. This cover page will be available on our center website. I will share it, I'll share the process subsequently. Then you need to put your IGNOU ID card, then copy of assignment questions on the third page. Then you need to put your handwritten assignment, original handwritten assignment. Each page should be numbered, pagination. Each page should contain your enrollment number, and each page should contain your sign for your originality. Assignment copied from the market or someone will give you 0 marks. So please ensure it's up to you to take best use of this option or opportunity available to you to secure maximum marks. This is a example in which I have given you the example how we are naming a file. So this is the example for MCOM. You can change it accordingly. And for submission of assignment on our website, there is a web page online assignment submission. So you select that page, and on that web page, there is a specific program wise QR codes. You can scan them, and you can reach to that Google form or click the link that is available. Through that link, you can directly reach to the Google form for your program. So select your program, enter your name, enrollment number, session, uh, program code, and course code, upload assignment. Each course contains one assignment, and each course assignment single file need to be updated. You can receive the copy of the same if that option is open, and keep that record safe. It will take around 1 to 2 months to process the entire system. Once the assignment marks are processed or evaluated, it will forward to university for onward upgradation. Ensure you are keeping the file size below 5 MB. And believe me, over 10,000 assignments have been submitted below that size. So it is feasible. You can easily make the file of that size, and it can be updated, no problem. And finally,
during this interaction, if you feel any problem, any feedback you need to submit, so on the last page of our website, there is a contact center web page. You can scroll down, it's a screenshot over there. In that, there is an option of a feedback. You can fill your feedback here, and we will try to address that feedback, that point that you are sharing with us. This is about today's presentation. In addition to this, because today we are having our counselors as well, for students specifically, there is an option of a project or dissertation work. So for that purpose, you need to start early so that you can finish early. You have the option to join that group and get in touch with the counselors available with us, interact with them, and plan your work well in advance, because it takes reasonable time, and you take it casually, and then it gives you a lot of trouble. So first you join that group. Our counselors will also be there. So if we are not organizing counseling as of now immediately, but if feasible, you can start with your project work depending upon the availability of counselors. That is one thing. In addition to this, you can select the as of now there is a liberty, you can select the counselor, academic counselor, or teacher as per your preference for project work, even outside from our center. As of now, that facility is available if you are selecting interdisciplinary project or something like that. So that option is also available. With this, I conclude my presentation. And now, if you have any doubt, you can raise your hands. I will call you in one by one, depending upon your serial. So if you have any doubt, you can raise your hands. I just see a single one. Okay, good. So first, may I request Aditi to please unmute and ask the question. Hello, sir. Good afternoon, sir. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर मैंने 1 जनवरी 2024 को मैंने सबमिट किया था असाइनमेंट ऑनलाइन। सर कोई अपडेट नहीं आई। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि ये जो असाइनमेंट सबमिट करने वाला है, इसमें असाइनमेंट सबमिट करने के बाद अपडेट होने में प्रोसेस में टाइम लगता है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी भी लास्ट डेट एक्सटेंड की हुई है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि असाइनमेंट आपने सबमिट किया है, उसके बाद हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, और उसके बाद यूनिवर्सिटी जाकर प्रोसेस होएगा, तो इट विल टेक टाइम। इट्स नॉर्मली टेक्स टाइम। तो लगभग 1-1.5 महीना का टाइम लगता है। और अभी मैं ईमानदारी से कहूँ तो जिन लोगों ने अक्टूबर नवंबर में जमा किया है, तो उनकी भी कोई अपडेट अभी नहीं है। तो उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपके पास प्रूफ्स है सबमिशन का, आपके पास असाइनमेंट है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अटेंड होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके सर। सर ये क्लास चली है काउंसलिंग की, किसकी चल रही है? क्लासेस भी चल रही है। प्रोग्राम क्या है आपका? सर मान का फर्स्ट ईयर है, जनवरी से। अभी जो मान चल रहा है वो जनवरी 2021 के सेशन की है, जुलाई की नहीं है। अभी जो आज मीटिंग है हमारी, जुलाई 2021 सेशन की है। हाँ, तो जनवरी की चल रही है। हाँ सर, सिर्फ क्वेरी की चल रही है। हाँ, सॉरी सर जो क्वेरी है वो सिर्फ आपको। हाँ, जो जनवरी की क्लासेस हैं वो चल रही हैं, उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं है वो अभी, मैं श्योर नहीं हूँ वो कंप्लीट हो गई हैं, बचती हैं अभी हैं, शायद कुछ बच रही हैं। हाँ सर, लेकिन जुलाई, हाँ तो वो है, उनको अटेंड कर सकते हो। जुलाई 2021 की उसके बाद चलेंगी। अच्छा सर। है ना, वो जुलाई उसकी बाद चलेंगी जी। ओके। अंकित कुमार। Am I audible? हाँ जी। So my question is that I have book synopsis for all. यार बीच में आपका आवाज ब्रेक हुआ है, प्लीज। सर मुझे कोई भी मेंटर नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप कहाँ रहते हो पहले बताओ। सर मैं अभी कानपुर में हूँ। अच्छा, तो कानपुर में हो तो अभी लकीली बहुत अच्छा मौसम चल रहा है कि आप अपने आस
से आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ पर अपने जो सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड अगर कोई टीचर है तो वो भी आपके मेंटर बन सकते हैं। सर एक्चुअली मेरा जो टॉपिक है वो सोशल से रिलेटेड है और मैं भी आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, रीज़न बता रहा हूँ कि देखिए अभी आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? सर कानपुर यूनिवर्सिटी से। कानपुर यूनिवर्सिटी में आप सोशियोलॉजी के टीचर को जानते हैं किसी को? नहीं सर। मतलब आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या था आपका? जूलॉजी ऑनर्स। अच्छा, जोलॉजी ऑनर्स में, तो आपने फिर सोशियोलॉजी वाला सब्जेक्ट क्यों ले लिया ऐसा मुश्किल वाला? सर सोशलॉजी मुझे ज़्यादा ही अच्छा, तो अच्छी बात है। तो आपको देखिए सबसे पहले अगर आपके लिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने जो टॉपिक सोचा है उसको आप मेरे से बेहतर तरह से समझ पा रहे हो, है ना? तो यस सर। आप उसको आपको सोचें कि फ़ोन पे व्हाट्सएप पे वो अटेंड हो जाए, वो थोड़ा सा मुश्किल वाला ऑड वाली सिचुएशन है। तो अगर आपके लिए फिजिबल है कानपुर यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में अप्रोच करना, किसी कॉलेज में किसी टीचर को अप्रोच करना जो आपके आसपास में है ना? तो आप उनको उनको फर्स्ट हैंड उनको ट्राई कर लो क्योंकि वो आपको इजी एक्सेसिबल है। मैं जो आपको ऑप्शन बता रहा हूँ क्योंकि इस लॉकडाउन में ये लिबर्टी मिली है कि जो पहले ऑलरेडी अप्रूव्ड नहीं है काउंसलर्स, वो भी या जो टीचर्स हैं लेकिन वो यूजीसी के रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो गाइड बन सकते हैं, है ना? और अगर वो आपका मटेरियलाइज नहीं होता है किसी वजह से, किसी भी वजह से, तो जो हमारे काउंसलर्स हैं उनको कुछ सेशंस अलॉटेड हैं इस काम के लिए, तो आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी अवेलेबिलिटी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक काउंसलर के पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनकी लिमिट है कि वो 5 या 6 ऐसे ही कुछ स्टूडेंट रख सकते हैं। तो आमतौर पे वो सैचुरेटेड रहते हैं, तो अगर वो कोई टीचर अवेलेबल हैं तो आप अपना जब इनका सेशन अवेलेबल हो तो अपना टॉपिक डिस्कस कर लीजिए, और जो टीचर हमारे उससे रिलेटेड फील्ड के होंगे तो वो डेफिनेटली अवेलेबल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनके पास स्टूडेंट्स मतलब सीट्स अवेलेबल हों। सीट इसीलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि पहले नहीं था, पहले थोड़ा सा रिजिडनेस थी। अब आपके पास, मैं इसको प्लस पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कानपुर यूनिवर्सिटी में कोई कॉलेज में टीचर हो या यूनिवर्सिटी में कोई टीचर हो जो आपके आसपास हो, जानते हो, क्यों ऐसा तो नहीं है कि आप किसी आर्ट्स के स्टूडेंट को नहीं जानते होंगे, किसी आर्ट्स के स्टूडेंट के थ्रू उनके टीचर्स को अप्रोच कर सकते हैं। सोशियोलॉजी के टीचर हो सकते हैं, उनके सोशल साइंस वर्क के हो सकते हैं, रिलेटेड हो सकते हैं। तो मैं तो इसको कहूँगा कि पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है मेरा। जी बताइए। गाइड होंगे वो गवर्नमेंट चाहिए या यूनिवर्सिटी? नहीं, मैं लास्ट का सेंटेंस आपको समझ नहीं पाया। वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ओके सर। ओके। है ना? मतलब वो जो टीचर की क्वालिफिकेशन होती है ना, वो हो पीएचडी हो बहुत अच्छी बात है, परमानेंट टीचर हो वो बहुत भी अच्छी बात है। तो लेकिन अगर वो पीएचडी है, उनको 5-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी काम करते हैं। ठीक है सर। थैंक यू। नेक्स्ट तेजस्विनी। हेलो। यस, हेलो। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मैं जुलाई 20 सेशन से हूँ। हम्म, सर जैसे कि हम लोग फर्स्ट ईयर प्रमोटेड हो चुके हैं, तो सर हमारी जो प्रैक्टिकल्स है फर्स्ट ईयर के वो अभी तक कंडक्ट नहीं हुए हैं हाफ बैचेस के लिए सर। तो सर वो कब तक कंडक्ट होंगे सर? आप उसके ना सेंटर की वेबसाइट आप देखते रहिए, उस पर अपडेट करेंगे जो हम प्रैक्टिकल वगैरह का सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे ना, जी तो सर। उसकी सेंटर की वेबसाइट पर हम अपडेट करेंगे, एक चीज़। दूसरा, जो भी आपके रेस्पेक्टिव सेशन का अगर व्हाट्सएप ग्रुप हो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें शायद हम लोग शेयर करेंगे तो वहाँ से आपको मिल सकती है इन्फॉर्मेशन। ओके सर। और सर अभी जैसे हम लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हैं तो फिर उनकी क्लासेस कब से कंडक्ट होंगी सर? सेकेंड ईयर में आप कब आए हो बताओ, कौन से सेशन के सर हो आप? जुलाई जुलाई 2000। 2021 में। हाँ, तो जुलाई 2021 का शायद अभी आरआर का डाटा हमें नहीं मिला है अभी। ओके सर। अभी ये फर्स्ट ईयर एडमिशन का डाटा है, अगर आरआर का डाटा होगा तो फिर उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने शेयर कर रखा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टीचर वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे आपको। सर ये स्टडी सेंटर के वेबसाइट पे। हाँ, स्टडी सेंटर की वेबसाइट पर मैंने जो अभी प्रेजेंटेशन शेयर किया है ना, उस प्रेजेंटेशन में मैंने काउंसलिंग स्केड्यूल के नाम से एक वेब पेज है, उस हाँ। वेब पेज पर उस वेब पेज पर
हाँ, उस वेब पेज पर आप एक काम करिएगा, इसमें कॉन्टैक्ट सेंटर में ना फीडबैक मेंशन कर दीजिए कि हमारा मान का ग्रुप बना अपडेट कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें ओके श्योर सर। मान का ग्रुप नहीं है, मान का ग्रुप नहीं है, मैं नोटिस कर रहा हूँ। तो मान का ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का। ओके सर। ओके सर। और आई थिंक MAPY का भी नहीं है, तो मैं यहाँ ग्रुप अपडेट कर दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके। नेक्स्ट मनस्विनी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर मैं मान जुलाई 21 में ज्वाइन हुए। जी, सर ये असाइनमेंट्स का प्रोसेस जो अपडेटेड है उसका लास्ट डेट कब है सर? उसका मैडम 31 मार्च 2022। 31 मार्च सर। और टर्म एग्जाम सर? टर्म एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज होगा, और एग्जामिनेशंस आपको कहा जाएगा TEE जून 2022। सर इसका ऑनलाइन क्लासेस है सर मान का? मान का अभी जैसे मैंने शेयर किया, आपका व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक अपडेट कर दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और मोस्ट प्रोबेबली फेब के फर्स्ट या सेकंड वीक से स्टार्ट होगा आपका। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द व्हाट्सएप ग्रुप का डिटेल्स है? मैडम सेंटर की वेबसाइट मैंने आपसे शेयर की है, उसमें काउंसलिंग स्केड्यूल के नाम से एक वेब पेज है, आप उस पर जाइएगा, और उसमें आप जुलाई सेशन का स्क्रॉल करोगे तो जुलाई सेशन का आपको QR कोड दिखाई देगा। उस QR कोड को स्कैन करोगे तो आप अपने रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाओगे। तो अभी एज ऑफ नाउ जुलाई का अपडेट नहीं है, जनवरी का अपडेट है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। तो जनवरी तक का हमारा ग्रुप एक्टिव है, तो जनवरी के जब सेशंस वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आपका जुलाई का ग्रुप अपडेट कर देंगे हम लोग। सर लाइक ऑनलाइन पे फ्लेक्सिबल है सर असाइनमेंट सबमिशन? ऑनलाइन का ही लिंक है मैडम, ऑनलाइन सबमिट करना है। Okay, there won't be any issue, right, if we submit through online? नहीं, कोई इशू नहीं, हम ऑनलाइन ही सबमिट करवा रहे हैं, ऑफलाइन अवॉइड करवा रहे हैं। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके ओके जी। अपूर्व सिंह। हेलो सर, am I जी audible? हेलो, यस यस। सर ये क्वेरी थी, मैं जुलाई 2020 बैच से हूँ। जैसा आपने बताया हमारे बैच का शायद अभी QR कोड नहीं आया है, तो वो गूगल फॉर्म फिल कर दिया है। 2021 ना, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, मैं अपडेट सर जुलाई अपडेट कर दूंगा उसको। जुलाई 2020 तो यार ओवर हो चुका है। जुलाई 2021 का मतलब जुलाई 2020 में आप फर्स्ट ईयर थे ना? जी सर, अभी जुलाई 2021 में सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ। हाँ हाँ, तो उनका अभी अपडेट नहीं हुआ, उनका हो जाएगा। उनकी जो है सेशन वगैरह जो है शायद फेब फर्स्ट वीक से करेंगे हम लोग। जी सर। अभी जो है जनवरी चल रहा है। ओके सर। सर जो असाइनमेंट्स हमें देने होते हैं फर्स्ट ईयर का तो मैंने सबमिट कर दिया, उसके मार्क्स भी रिफ्लेक्ट हो गए ग्रेड कार्ड में। तो सर जो सेकंड ईयर का असाइनमेंट है वो कौन से सेशन वाले असाइनमेंट सॉल्व करना है? उसमें लिखा होगा जनवरी 2021 लिखा होगा, उसकी जमा करने की लास्ट डेट होगी 31 मार्च 2022। ओके सर, लाइक क्योंकि दो असाइनमेंट दिख रहे हैं, एक है जिसमें लिखा है सेकंड ईयर कोर्स, दोनों में सेकंड ईयर कोर्स लिखा है, एंड जुलाई 2020। हाँ, नहीं उसमें लिखा होगा जी जनवरी 2022, सॉरी जुलाई 2021। एक बार देख लो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लो। जिसकी लास्ट डेट, जिस असाइनमेंट की जमा करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2022 है, वो है, आप ये देखो। ओके सर, समझ गया सर। अगर जो है उसको फ्रंट से क्लियर नहीं आ रहा तो उसकी लास्ट डेट से चेक कर लो। ठीक है सर, जिसमें 2022 31 मार्च आ रहा है उसका सेकंड ईयर वाला सॉल्व कर लो। हाँ, वो जमा करना है आपको। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ, रोहित शिंदे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। यस यस, क्वाइट। सर मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, पूना से। यस यस। सर मैंने जून 2019 में एडमिशन लिया था मान को। 2019 में, ठीक है। या तो फर्स्ट ईयर असाइनमेंट भी सबमिट किए थे, उसके मार्क्स भी रिफ्लेक्ट हुए मेरे ग्रेड में जी। एज पर नोटिफिकेशन जो आया था दिसंबर में 2020 में कि हम प्रमोट हुए हैं, और वहाँ उसमें मेंशन किया था कि फर्स्ट ईयर का जो ग्रेडिंग है हमारा वो सेकंड ईयर के बेस पे होगा, राइट? तो मैंने एक्चुअली मेंटर नहीं मिले थे मुझे, मतलब सेकंड ईयर के लिए मैंने सिनॉप्सिस क्रिएट किया। एक कंसर्न शोमिला मैम करके है, उनसे टच में था, लेकिन उन्होंने मेरा
जो सिनॉप्सिस है यूएलइट में थोड़ा सा देरी की है, मतलब इवन लास्ट ईयर से मेल पे रिप्लाई नहीं किया उन्होंने। क्लैरिफिकेशन और प्रोजेक्ट गाइड की मैंने सेकंड ईयर एडमिशन जो है मेरा स्किप किया था, और रिसेंटली मैंने एडमिशन लिया है जुलाई 2021 बैच। तो ये एग्जामिशन जो है फर्स्ट ईयर एप्लीकेबल है या नहीं है, ये मेरा है। और देखो सबसे हाँ बताओ, आप सेकंड क्वेरी और सेकंड क्वेरी एक साथ ही बता दो यार। सेकंड क्वेरी भी है कि अगर मेरे वही एग्जिस्टिंग मेरा सिनॉप्सिस है वही कंटिन्यू करना है तो मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए कि प्रोजेक्ट गाइड कैसे है। देखिए जैसे अभी जैसे मैंने अभी आपको शेयर किया था, अभी एक साथी हमारे कानपुर से हैं या और आप पुणे से हैं। आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया था? सर मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और मैंने पीजी डिप्लोमा किया था ट्राइबल डेवलपमेंट का, और मैं करंटली मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में काम कर रहा हूँ महाराष्ट्र में। आपके लिए क्या कोई फिजिबल है कि आपके लिए आसपास में कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आपको कनेक्ट हो सकते हो किस तरीके से? यस डेफिनेटली, पुणे यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने पीजी डिप्लोमा किया था ट्राइबल डेवलपमेंट का, हाँ, तो वहाँ के तो प्रोफेसर वहाँ है। तो अगर आप वहाँ पर किसी कि जो ये प्रोजेक्ट या ये करने वाला काम है, ये अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो इतना इजी काम नहीं है कि आपने मेल पर भेजा और वो अगला उसको अटेंड कर पाए। तो कई बार हो जाता है कि उसमें कम्युनिकेशन डिले हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमें कहाँ फिजिबल है, कहाँ हम मतलब कन्वीनियंटली प्रोसेस करा सकते हैं। तो अगर आपके लिए कोई भी टीचर जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में है, कॉलेज सिस्टम में है, वो चाहे ऑल इंडिया कहीं भी हो, पुणे के भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। वो इंटरडिसिप्लिनरी भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है मान के ही हूँ। वो आपके सोशियोलॉजी के, हिस्ट्री के, फिलोसफी के, पॉलिटिकल साइंस के, मतलब अब ये ऑप्शन है इंटरडिसिप्लिनरी हो सकते हैं, है ना। तो आपको उनका बायोडाटा वगैरह साथ में सबमिट करना पड़ेगा। तो आप उनके कंसल्टेशन में सिनॉप्सिस बनाकर ईमेल से सबमिट कर सकते हो, है ना। प्रोफेसर सर मुझे थोड़ा सा हैं। क्लैरिफिकेशन यही चाहिए थी कि जो मेल भेजना है अलॉन्ग विद सिनॉप्सिस एंड जो कंसर्न होंगे हमारे प्रोफेसर, उनका क्या डिटेल्स भेजना है? बायोडाटा कि भाई ये जो है इनका ये डेजिग्नेशन है, ये इनकी क्वालिफिकेशन है। वो डेजिग्नेशन टाइप का होता है, उसमें फॉर्मेट होता है, शायद मैं अभी फॉर्मेट का नाम नहीं जान कर पा रहा। तो वो फॉर्मेट होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि क्योंकि अब आप लोग जो है आउटसाइड सिस्टम से कांटेक्ट कर, तो अपने टीचर का अगर आईडी कार्ड हो तो बहुत अच्छी बात है। आईडी कार्ड और उनका बायोडाटा। यस सर, वो सबमिट कर दूंगा। लेकिन मुझे कंसर्न मेल अगर मिला है हाँ, तो उनका बायोडाटा और वो चीज़ें आप सबमिट कर दीजिए। प्रोफेसर वेंकटरमन सर हैं जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं आपके मान के। तो आप अपनी सिनॉप्सिस उनको फॉरवर्ड करेंगे थ्रू ईमेल। एंड वो थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेस करने में, 1 वीक या 2 वीक जितना टाइम लगेगा डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी। वो आपकी सिनॉप्सिस को इवेलुएट करेंगे। वहाँ से यूनिवर्सिटी से जो भी मतलब प्रोफेसर उसको अटेंड कर रहे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपका फील्ड क्या है, वहाँ से आपको रिवर्ट ईमेल आएगी कि आपका टॉपिक अप्रूव हुआ है, मॉडिफाई करना है ये सजेशन से। तो जैसा आपको सजेशन आए अकॉर्डिंगली आप फॉलो कर सकते हो। अगर ओके हो गया है तो आप उस पर वर्क करिए, मॉडिफिकेशन सजेस्ट किया है तो मॉडिफिकेशन करिए। और जब आप फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करें तो इस ईमेल का प्रिंट आउट लगाना है आपको। ओके सर, कि आपका सिनॉप्सिस अप्रूव किया हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो इसका आपको प्रिंट आउट या इसका पीडीएफ फाइल लगाना है उसमें साथ में। ओके सर, और जो मेरी पहली क्वेरी थी कि ये जो फर्स्ट ईयर का हमें जो एग्जामिशन मिला था, क्या स्टिल एप्लीकेबल है या फिर हमें दोबारा फर्स्ट ईयर का टर्म एग्जाम देना पड़ेगा? ये आप अपना ग्रेड कार्ड देखो। ग्रेड कार्ड सर ग्रेड कार्ड में सिर्फ असाइनमेंट के मार्क ही शो हुई है। इवन इफ मैंने प्रैक्टिकल सेशन भी ऑनलाइन अटेंड किया था, दिखाई दे रहा है इनकम्प्लीट लिखा दिखाई दे रहा है। यस सर, सॉरी कंप्लीट लिखा दिखाई दे रहा है। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ ऑडिबल है। ग्रेड कार्ड पे क्या लिखा दे रहा है?
सर इनकम्प्लीट शो हो रहा है, उसमें सिर्फ असाइनमेंट के सब्जेक्ट मार्क शो हो रहे हैं सिर्फ। इवन मैंने प्रैक्टिकल सेशन भी अटेंड किए थे। तो अगर प्रैक्टिकल एग्जाम कंप्लीट कर लिया? नहीं सर, सेशन ही हुआ था 2019 में, कोविड के टाइम में, सिर्फ गूगल मीट पे प्रैक्टिकल सेशन हुआ था। नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम दे दिया? नहीं सर, एग्जाम नहीं हुआ। हाँ, तो जब तक प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता तो प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं है तब तक। और सर अकॉर्डिंगली नोटिफिकेशन फर्स्ट ईयर के जो ग्रेडिंग है वो बेस्ड ऑन सेकंड ईयर, तो वो स्टिल एप्लीकेबल फॉर प्रैक्टिकल? नहीं, प्रैक्टिकल के लिए तो जहाँ तक मुझे लगता है नहीं है। प्रैक्टिकल तो अलग कंपोनेंट है। प्रैक्टिकल तो उन लोगों के लिए एग्जाम हुआ है अलग से, ऑनलाइन ही हुआ है हालांकि, तो प्रैक्टिकल हुआ है उनका। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू सर। ओके जी, ओके, थैंक यू। तौफीक। सर, हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून। सर, माय क्वेश्चन इज कि सिरॉप्सिस की कोई डेडलाइन होती है? नहीं, आपकी अपनी लिमिटेशन है, आप कब तक करना चाह रहे हो, टाइम से पूरा कर दो, जल्दी हो जाएगा। अच्छा, और सर प्रैक्टिकल क्लासेस भी होती हैं? प्रैक्टिकल, हाँ, सेशन होगा, उसके लिए ऑनलाइन सेशन होगा वो, जिसमें आपको एड्रेस किया जाएगा उन चीज़ों को। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके जी। सुषमा ठाकुर। या हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। सर, मैं जैन 2020 बैच की हूँ। अभी अक्टूबर में हम लोगों का ना प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था थ्योरी का, और शायद कुछ बच्चों के लाइक वाइवा भी हो गया था प्रैक्टिकल का जी। बट हमारा अभी तक नहीं हुआ। आई जस्ट वांटेड टू नो कि वो कब तक होगा। मतलब मैं भी हूँ, मेरे साथ काफी मैडम सारे बच्चे हैं। मैडम, उसमें 2 तरह के स्टूडेंट थे। सबसे पहला, क्या आपने TEE उसमें कोई नोटिफिकेशन जो था ना, उसमें TEE जून 2021 में आप एलिजिबल थे, आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था? हाँ, मैं एलिजिबल तो थी सर, बट आई कुड नॉट सिट फॉर द पेपर। एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था? हाँ, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था। आपने, हॉल टिकट था आपके पास? एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था। जी। ठीक है, तो ऐसे केस में क्योंकि उसमें 2 तरह का इश्यू था कि आप उसके लिए एलिजिबल थे या नहीं थे, तो जो एलिजिबल स्टूडेंट्स थे उन लोगों का पार्शली वो प्रोसेस हो गया है, जिनका वाइवा वगैरह सब कुछ हो गया था, लेकिन उसमें हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट मिसिंग हो या पेंडिंग बचे हों। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक ईमेल लिख दीजिए स्टडी सेंटर को, ठीक है, और उसकी कॉपी जो है प्रोफेसर वेंकट सर को भी आपको लिखनी होगी, जो इसके प्रोग्राम के इंचार्ज हैं। उसमें पूरा डिटेल डाल दीजिए कि सर मैंने ये सेशन अटेंड किया था और मैं एलिजिबल थी, मेरे पास ये हॉल टिकट भी है, तो मेरा वाइवा ऑर्गेनाइज किया जाए। अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, वाइवा मिसिंग है अभी तक। ठीक है, ओके डिटेल सर, क्योंकि ऐसे भी बच्चे थे, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मतलब ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने कि एग्जाम दिया था फर्स्ट ईयर का, उनके थ्योरी तो हो गया बट वाइवा नहीं हुआ। नहीं, तो वाइवा के लिए जो मैं वो कंडीशन बता रहा हूँ वही वजह होगी, तो उस वजह से आप एक बार मेल डाल दो। अगर आप उन लोगों को जानते हो, एक बार ग्रुप मेल डाल दो, बहुत अच्छी बात है। तो वो एक ऑप्शन मेरे डिस्कशन में है कि हम लोग उसको ऑर्गेनाइज कराएंगे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। ओके। नेक्स्ट, मनस्विनी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। सर, मेरा एक दूसरा क्वेरी है कि लाइक मेरा फ्रेंड है ये इंट्रोडक्शन लिंक पर्सनली सर। सॉरी, क्या बता रहे हो, दोबारा बताओगे प्लीज? जो अभी इंट्रोडक्शन लिंक है सर, वो मेरे दोस्त ने मेरे तरफ फॉरवर्ड किया था, बट मुझे ये पर्सनली नया था लिंक, लाइक वी हैव मैडम, आपका प्रोग्राम मान ही है? यस सर। मैडम देखिए, ऐसा हो सकता है कि जिनको मैंने मेल किया है वो सारा डाटाबेस जो मेरे पास था मैंने उनको मेल किया है, और मैं 1 सेकंड के लिए आपको चेक कर देता हूँ कि भाई आप, हो सकता है आप किसी दूसरे स्टडी सेंटर से कनेक्टेड हो, हमारे से कनेक्टेड ना हो, 1% चांस ये हो सकता है। तो आपका जुलाई 2021 बैच है? यस सर।
अच्छा, 1 मिनट होल्ड करिएगा प्लीज। जी सर। जी आपका नाम मनस्विनी लिखते हैं या फिर कुछ और लिखते हैं नाम? लेला मनस्विनी सर, इट्स LELLA। हाँ, ये आप मैडम हमारे सेंटर पर ही हैं। ओके सर, सो आई डिड नॉट रिसीव एनी मेल्स। मैडम 1 मिनट चेक करता हूँ, मैं आपका ईमेल आईडी चेक करता हूँ। मैडम आपका जो ईमेल आईडी है, 1 मिनट, आपके ईमेल में 2 है न्यूमरिक? यस सर। ओके, तो ये ईमेल आईडी तो मैडम है डाटाबेस में। मैं एक बार ये चेक करता हूँ मैंने ईमेल भेजा है नहीं भेजा। जंक वगैरह हो सकती है, जंक मेल आ गया हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक तो मैडम 21 जनवरी को 21 जनवरी को आपके पास 21 जनवरी को आपके पास 10:30 बजे मेल आया होगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। ओके सर, आई विल चेक ऑन पीजी। हाँ, मेरे रिकॉर्ड में है, और अगर नहीं आ पाया किसी वजह से तो आपका इनफैक्ट जो वो व्हाट्सएप ग्रुप का ईमेल गया हुआ है आपको, तो बल्कि गया हुआ है, सर अदर और इंडक्शन मीटिंग का भी गया हुआ है, मेरे रिकॉर्ड से गया हुआ है आपको ईमेल। ओके सर, आई विल रीचेक देम सर। सर अगर लाइक इफ यू वांट टू कांटेक्ट योर ब्रांच और कांटेक्ट नंबर कुछ है सर, कि कांटेक्ट नंबर, कांटेक्ट नंबर पोर्टल पे जो नंबर्स है, हाँ, वो लाइक दे आर लाइक बिजी बोल के बताता है, दे नेवर गेट कनेक्टेड। नहीं मैडम, पोर्टल वगैरह का मुझे नहीं पता। मैंने अपने जो स्टडी सेंटर की वेबसाइट है, उस स्टडी सेंटर की वेबसाइट पे आप जाओगे तो स्टडी सेंटर की वेबसाइट पे मैंने ईमेल आईडी वेबसाइट है, उसके अलावा कॉन्टैक्ट सेंटर में बॉटम में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, मैडम सरोज मैडम का नंबर दिया हुआ है। जी सर। तो उनको आप व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो एंड शी रेस्पॉन्ड्स बैक। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। अनुराग अग्रवाल जी। गुड इवनिंग सर, मैं अनुराग। जी बताइए। सर मैं जनवरी 2020 प्लेसमेंट। हाँ सर हमने 17 अक्टूबर को अपना प्रैक्टिकल दिया। हाँ, मैंने ये क्वेरी सुन ली है। अभी आपने अगर पुराना डिस्कशन सुना हो तो अगर आपका वाइवा नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ एक मेल डाल दीजिए, उसको फिर अटेंड करेंगे, उसको देखते हैं कैसे करते हैं। जी सर। और सर वाइवा नहीं हुआ ना? जी हाँ, ठीक है। तो सर मेल आपको लिखना है सेंटर को, और सेंटर को ईमेल करना और प्रोफेसर वेंकट सर को उसकी कॉपी कर देना, या उनको करना, हमें कॉपी कर देना, ऐसे कर देना। अच्छा, वेंकट सर को एक और उसकी कॉपी हाँ, उसके साथ अटैचमेंट ये भी लगाना तुम्हारे पास आईडी कार्ड था। हाँ सर, आईडी कार्ड एग्जामिनेशन वगैरह। बस। और सर सेकंड थिंग ये पूछनी थी। बताओ जी, बताओ, बोलिए। सर फर्दर फॉर एनी क्वेरी यदि होती है बाद में तो आपको सर कांटेक्ट करने का कोई तरीका बता दीजिए। ये सेंटर का ईमेल आईडी और मैंने जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया है वो दिया है ना, फीडबैक वाला ऑप्शन दिया हुआ है। सर आपका जो व्हाट्सएप है सर उसमें मैंने किया था बट आपने रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई का पोजीशन ये है कि मेरे पास जो सिमिलर टाइप की क्वेरी ना आपकी जो है उसके वाइवा नहीं हुआ, वो क्वेरी बहुत आई थी, मैं मान रहा हूँ। लेकिन उस टाइम हमारी प्रायोरिटी जो हम लोगों ने डिसाइड किया था, प्रायोरिटी वो है जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है या कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि एक गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर दैट रिटन एग्जामिनेशन एंड वाइवा।
तो दोनों तरह की लिमिटेशन थी। दूसरा एग्जामिनेशन और जो प्रैक्टिकल था वो किसी ने भी फिल कर दिया था, चाहे वो एलिजिबल था या नहीं था। यस सर। ठीक है, तो जो ओरिजिनल लिस्ट थी जो हमारे पास, जिन लोगों का हमें ऑर्गेनाइज करना था, उससे ज़्यादा लोगों ने अप्रोच किया था और उसमें से बहुत सारे नॉट एलिजिबल केस थे। तो वो फिल्टर आउट करना और हर ईमेल को अटेंड कर पाना, वो बियॉन्ड कैपेसिटी वाला सिचुएशन था। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये ऑप्शन रखा था कि जिन लोगों जो एलिजिबल हैं उनको एक बाद में अलग अपॉर्चुनिटी देंगे अलग से।